Good morning, student. Welcome back to Arpan International School. How are you? I hope you're fine. Be safe at home. So, student, I am your computer teacher, Mrs. Neelam, going to teach you the second part of the video of our lesson number 5, editing text in Microsoft Word 2007. In the first part of the video, we have seen about how to create a new document, how to save that, how to open it again and how to exit from it, and about to selecting any document for editing the text. Now in today's video we are going to see how we can insert the text in the document. So open your textbook of Computer Subject Standard 4th, page number 39. I am starting reading and explaining the lesson. You also start the reading with me. So first, see inserting the text. How we can insert the text in a document. If you want some changes to do in that MS Word, if you already type and if you already save that in that file, you want to insert some text. So how you can insert? See, MS Word provides us the facility to add new text to an already existing document. MS Word is providing us a facility. Which facility? To add a new text to already existing document. If we done some work in that document before a 1 month and after a 1 month we want to do some changes in that previous document. So this facility is MS Word provide us to do some changes in that previous document which was made before 1 month. So how we can do changes? Let's see. Place the cursor to the right of the character where you want to insert the text and then type the text. Then place your cursor. After 2 lines, if you want to add some text in that line, so place the cursor and start to type the text that much of you want. And the second one, the exiting text which is placed after the cursor will be shifted to the right side. जैसे ही डॉक्यूमेंट में हम क्या करेंगे, न्यू टाइपिंग करना स्टार्ट करेंगे और जैसे ही पहले की लाइन थी वो क्या होगी, अपने आप राइट साइड में प्लेस होती जाएगी, शिफ्ट होती जाएगी. ओके, हियर क्विक व्यू इज देयर. कंट्रोल A is for select the entire text. If you want to select the entire text given in the document, so you can directly press the button Control A. After pressing this Control A button, so you will directly select the entire text. Okay. Second one, quick view, shift plus home. Select the text from the current position to the beginning of the line. So you can press the shift plus home button. Then shift plus end. Select the text from the current position to the end of the line. अगर कोई भी हमें टेक्स्ट सिलेक्ट करना है फ्रॉम द करंट पोजीशन टू द एंड ऑफ द लाइन तक, तो हम शिफ्ट प्लस एंड क्या कर सकते हैं, वहाँ पे बटन प्रेस करके उसे शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं. सो हियर फिगर 5.9 इज देयर, इंसर्टिंग अ टेक्स्ट. जैसे मैंने आपको कहा कि जहाँ से आपको न्यू लाइंस ऐड करनी है अपने पैराग्राफ में, अपने डॉक्यूमेंट्स में, तो आप क्या करोगे, वहाँ से कर्सर वहाँ पे क्लिक करके वहाँ से आप टाइपिंग करना स्टार्ट करोगे. जो भी नीचे की लाइंस होती है, न्यू जो पहले से जो लाइंस वहाँ पे हमने टाइप की, वो क्या करेगी, अपने आप राइट साइड में शिफ्ट होती जाएंगी. देखें, यू कैन इंसर्ट योर सम लाइंस इन बिटवीन दैट बोथ द लाइंस. Understood? See, next, moving the text. If you want to move some text, so how you can move? So here, figure 5.10, moving the text. Here, copy but cut button is there, copy button is here, and paste button is here. See your figure 5.10 in your textbook.
This feature is used to move the text from its original location to a new location. ये फीचर हमें कब यूज़ करना है कि हमें जब अपना टेक्स्ट मूव करना है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन टू अ न्यू लोकेशन तक क्या करना है, हमें अपना टेक्स्ट मूव करना है, तभी मूविंग द टेक्स्ट ये फीचर क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें यूज़ करना है. देन सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मूव. Click the cut button in the clipboard group on the home tab and press Ctrl plus X. These buttons are there: cut button, paste button and copy button. If you want to cut some text from your paragraphs, you directly select the text that you want to move and just click the cut button. कट बटन पे आप क्या करोगे, वहाँ पे क्लिक करोगे. द टेक्स्ट डिसअपियर्स फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड इज प्लेस्ड ऑन द क्लिपबोर्ड. वो क्या होगा, वहाँ से कट हो जाएगा. देन पोजिशन द कर्सर एट द लोकेशन वेयर द टेक्स्ट इज टू बी प्लेस्ड. और वहाँ से कट करके आपको वो जो कट किया हुआ टेक्स्ट आपको जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आप क्या करोगे, फिर उसको कर्सर की हेल्प से उस लोकेशन तक लेके जाओगे और वहाँ पे आप पेस्ट का ऑप्शन है बच्चों, तो पेस्ट का ऑप्शन क्या करना है, आपको क्लिक करना है. देन क्लिक द पेस्ट ऑफ बटन एंड प्रेस द Ctrl plus V. The selected text appears at the desired location. If you want some words are there and if you want to cut from that position and take that word in the different location again in the next line or after 3-4 lines, so you can use the cut button and paste button for this moving the text. Understood? See the next, how to copy the text. If you want to copy some text, the same lines are there which are there in the paragraph 1 and which are there in the paragraph 5th or 6th. So you can copy the lines from the paragraph 2nd to paragraph 5th to 6th. So how we can copy the text? Let's see. Copy and paste option is used to duplicate the text. We can copy the text from one location to another within a document or even from one document to another. This feature helps in reducing our time and effort in typing. This feature what helps us? Helps in reducing our time and effort in typing. Copy feature is similar to the cut feature except that it copies the text and does not remove the text from its original place as a cut feature does. In a cut feature what we did in that we cut some text and we again replace that the same in the another line, but in a copy feature we cannot cut any text from the first line. We directly made a duplicate or made a copy of the same text for the next line. Okay. How to select? Select the text that you want to copy, then click on the copy button in the clipboard group on the home tab or press the Ctrl C. आपको जो मैंने कॉपी ऑप्शंस बताए थे, कॉपी ऑप्शंस पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है वो टेक्स्ट आपको सिलेक्ट करके. ओके. अदरवाइज एक शॉर्टकट की है, विच वन, Ctrl plus C. Ctrl plus C भी आप अगर क्लिक करते हो, प्रेस करते हो Ctrl plus C बटन, तो भी क्या होगा, जो गिवन टेक्स्ट है वो आपका कॉपी हो जाएगा. देन अ कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट is placed on the clipboard. Then position the cursor at the desired place. Where you want to duplicate that all the text, you have to place your cursor on that desired place. Then click the paste button. वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, पेस्ट बटन क्लिक करना है in the clipboard group on the home tab or press the Ctrl V. और अगर आपको शॉर्टकट की यूज़ करनी है तो Ctrl V भी आप यूज़ कर सकते हो. ओके. द कॉपी टेक्स्ट अपीयर एट इट्स नेक्स्ट लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट. विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल टेक्स्ट यू कैन कॉपी द टेक्स्ट टू द योर डिजायर्ड प्लेस. Understood how to copy, how to move and how to insert the text? Yes or no? Yes.
By doing practice at home in MS Word 2007, you will get the idea how to copy and how to move the text in a given document. Understood? See the next page. Turn your page. Page number 40. The copied text appear at its new location in the document. The next one is deleting the text. Now some text we don't want in our document. So how we can delete it? Let's see. Word provides the facility to erase the text. Follow these steps. Words क्या करता है हमें कि फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो टेक्स्ट हमें अपने डॉक्यूमेंट में चाहिए ही नहीं वो उसे क्या कर सकते हैं हम इरेज कर सकते हैं. तो कैसे इरेज करना है बच्चों? लेट्स सी. फर्स्ट वन, सम स्टेप्स आर देयर, वी हैव टू फॉलो दैट स्टेप्स. विच वन स्टेप? फर्स्ट वन, सिलेक्ट द टेक्स्ट. आपको जो भी डिलीट करना है फर्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट दैट. देन सेकेंड वन, प्रेस द डिलीट की. Delete key is there on your keyboard. Press the delete key. Then the selected text will be removed. जो भी आपने सिलेक्ट किया था उसके बाद आपने डिलीट की प्रेस की तो थर्ड स्टेप में क्या होगा? आपने जितना सिलेक्ट किया है टेक्स्ट उतना क्या होगा? वो रिमूव हो जाएगा. सो दिस इज द स्मॉल प्रोसीजर हाउ टू डिलीट द टेक्स्ट. अंडरस्टूड? यस. यूजिंग undo and redo commands. How to use undo and redo commands? See, MS Word keeps the tracks of all the changes that make in a document. हम डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस करते हैं उसका ट्रैक कौन करता है? कौन रख रहा है? MS Word अपने पास रखता है. We can easily undo any changes and restore the original टेक्स्ट. जो भी हम टाइप कर रहे हैं अगर हमें उसे अंडू करना है यानी फिर से हमें ओरिजिनल टेक्स्ट चाहिए या रिस्टोर करना चाहिए तो वही हम अंडू बटन पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं? हम रिस्टोर हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स में ले सकते हैं. बिकॉज MS Word कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द चेंजेस दैट वी मेक इन अ डॉक्यूमेंट. MS Word हमारे जो भी चेंजेस होते हैं डॉक्यूमेंट में उसका क्या करता है? वो उसे ट्रैक करते रहता है. सो अगर हमें उसमें कोई भी चेंजेस करवाने हैं तो हम अंडू बटन पे क्लिक करके हमें जो ओरिजिनल टेक्स्ट था वो हम उसे वापस ले सकते हैं. हाउ टू do this undo button? How to use? See, this option reserve the effect of the last command. To reserve one or more one action, click on undo button. Just like here. See, हमारे जो टाइटल बार है वहाँ पे स्टार्ट बटन के पास, टाइटल बार के पास अपर साइड क्या होता है? वहाँ पे हमें अंडू बटन की एक ऐसी स्क्रीन वहाँ पे मिलती है. तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमने जो भी उसके पहले की थी एक्शन थी हमारे डॉक्यूमेंट में टाइपिंग में तो वो इफेक्ट क्या होता है? हमें वापस मिल जाता है. एंड रीडो बटन. टू रिवर्स द एक्शन ऑफ द अंडू कमांड क्लिक द रीडो बटन. अगर रिवर्स करना है एक्शन ऑफ अंडू कमांड को तो हमें रीडो बटन पे क्या करना पड़ता है बच्चों? क्लिक करना पड़ता है. सी दिस फिगर 5.11 यूज ऑफ अंडू एंड रीडो बटन. फर्स्ट वन, डिलीटिंग द टेक्स्ट that he are in the original text. देखो, then here again delete. after the delete action हमने यहाँ पे क्या किया? जितनी ब्लू लाइंस थी दैट मीन्स सिलेक्टेड लाइंस थी उसको हमने डिलीट कर दिया. ओके. देन डिलीटेड टेक्स्ट अपीयर अगेन यूजिंग द अंडू बटन. अंडू बटन से क्या किया बच्चों? हमने वापस जो पहली वाली लाइंस थी उसको यहाँ पे फिर से हमने रिस्टोर कर लिया. अगर हमें इसके बाद फिर भी डिलीटेड टेक्स्ट डिसअपीयर करना है तो हम क्या करेंगे? आफ्टर प्रेसिंग द रीडो बटन अगेन क्या होगा? जितना सिलेक्टेड फर्स्ट टाइम में हमने जहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट किया था उतनी ही लाइंस रीडो बटन करने के बाद वो वापस उतनी ही डिलीट हो जाएगी. अंडरस्टूड? सी द फिगर 5.11 वेरी प्रॉपरली. Then next one, checking spelling and grammar.
Word has built-in dictionary and a set of grammatical rules to check the spellings and grammar of the text document. Incorrectly spelled words are displayed with a signal red wavy line beneath them. अगर आप टाइप करते वक्त कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो आपको उस वर्ड के नीचे एक रेड वेवी सिंगल लाइन वहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगी. ग्रामेटिकल एरर्स आर इंडिकेटेड विथ ग्रीन वेवी लाइन्स. अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक है आप जो टाइप कर रहे हो उसमें तो वहाँ पे ग्रीन वेवी लाइन्स वहाँ पे अपीयर होती है. द स्पेल चेक स्टार्ट्स the position of the cursor and checks the complete document. A simple way to check the spelling of any word is as follow. If you are typing any text and if some words are wrong by their spelling or grammatical mistake is there, the built-in dictionary shows you the mistake. If the grammatical mistake is there in some words, so green wavy line you can see below that word, and if the spelling mistake is there then red wavy line you can see. So if the one word is spelling mistake, so how you can check the spelling? There is some formulas. See, right click on the word with a red wavy line, then shortcut menu will open with various suggestions. अगर उस वर्ड पे अगर आप क्लिक करते हो जिस वर्ड के नीचे आपको रेड लाइन दिखाई देती है, दैट उसका मीनिंग क्या होता है बच्चों कि उस स्पेलिंग में मिस्टेक है. अगर उस पर आप क्लिक करते हो देन शॉर्टकट मेनू विल ओपन विथ वेरियस सजेशंस. देन क्लिक द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग इन द सजेशंस लिस्ट. वहाँ पे जितने सजेशंस आएंगे उसमें से जो भी करेक्ट स्पेलिंग है अगर आप उस पर क्लिक करते हो द इनकरेक्ट वर्ड विल बी रिप्लेस विद द करेक्ट स्पेलिंग इन द डॉक्यूमेंट. तो आपका जो भी टाइप किया हो इनकरेक्ट वर्ड है उसके प्लेस में करेक्ट वर्ड वहाँ पे अपीयर हो जाएगा. द शॉर्टकट की टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर इज F7 की. अगर आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर ही चेक करना है हमारे डॉक्यूमेंट में तो वहाँ पे एक शॉर्टकट की भी हम यूज़ कर सकते हैं. वो कौन सी है बच्चों? F7 की जो है हमारे कीबोर्ड पे, अगर हम उसे प्रेस करते हैं तो हमारी जो भी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स है वो क्या होगी वहाँ पे चेक हो जाएगी. अंडरस्टूड अबाउट इट? येस और नो? येस. सी द नेक्स्ट. Using 3S's. Using 3S's. 3S's means what? A book with its meaning and synonyms. 3S's helps to improve our vocabulary by providing a list of synonyms, that means word with similar meanings, and antonyms means word with opposite meaning for any word. Follow the some steps to use these 3S's. 3S's क्या करता है बच्चों? ये हमें हेल्प करता है कि हम अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव कर सके बाय प्रोवाइडिंग अ लिस्ट ऑफ सिनोम्स एंड एंटोनम्स. दैट मीन्स व्हाट? द वर्ड्स विथ अपोजिट मीनिंग. जो अपोजिट मीनिंग के वर्ड है और सिमिलर मीनिंग के वर्ड्स है वो क्या करता है, एक ऐसी वोकैबुलरी हमारी इम्प्रूव करने की कोशिश करता है कि हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करता है तो उसके रिलेटेड जो वर्ड्स है उसके सिमिलर मीनिंग के और उसके अपोजिट मीनिंग के वो हमें वहाँ पे दिखाई देते हैं. हाउ टू सिलेक्ट दिस 3S's? Figure 5.15 is there using 3S's. That means see, select the word for which you want to finish to find the synonyms and so student, how we can use these 3S's? 3S's means what? By researching, it is a book of the word of similar letters or another different opposite meaning words. ये क्या होता है? एक डिक्शनरी जैसे होता है. तो इसको क्या होता है बच्चों, जब हम उसे क्लिक करते हैं तो 3S's यूज़ करने के बाद क्या होता है, उसके वर्ड्स सिमिलर मीनिंग के वर्ड्स और उसके अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स हमारे सामने 1 बाय 1 लिस्ट करके आ जाते हैं. तो कैसे होते हैं वो देखो यहाँ पे.
How we can use this? Select the word for which you want to find the similar word, that means synonyms, and the opposite word meaning, that means antonyms. Then click the review tab, point to the proofing group and then select thesis command. और हमें पहले क्लिक करना है रिव्यू टैब पे, उसके बाद पॉइंट करना है प्रूफिंग ग्रुप पे, देन वी कैन सिलेक्ट द थ्रेसिस कमांड. द रिसर्च टास्क पैन ओपन. रिसर्च टास्क क्या होती है बच्चों? वहाँ पे एक विंडो होती है, वो ओपन हो जाती है, डिस्प्लेइंग द सिमिलर वर्ड एंड अपोजिट वर्ड. देन मूव द माउस पॉइंटर टू द सुटेबल वर्ड एंड क्लिक द ड्रॉप डाउन बटन एंड सिलेक्ट द इंसर्ट बटन. और आपको क्या करना है, वहाँ पे उस पर सूटेबल वर्ड जो है आपके वर्ड के अकॉर्डिंग जो हमने टाइप किया था डॉक्यूमेंट में, उसको आपको सिलेक्ट करना है. देन सिलेक्ट द इंसर्ट ऑप्शन. अगेन सिलेक्ट द इंसर्ट ऑप्शन. द एग्जिटिंग वर्ड विल बी रिप्लेस विथ द न्यू वर्ड. जो हमारा पुराना जो वर्ड था उसके जगह पे हम क्या करेंगे, उस पर न्यू वर्ड उसमें इंसर्ट करेंगे. ओके. देयर आर द टू मीनिंग्स. सिमिलर भी मीनिंग्स आते हैं वहाँ पे और अपोजिट मीनिंग्स भी हमें वहाँ पे दिखाई देते हैं, पर हमें जो मीनिंग हमारे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग होता है वही क्या करेंगे, हम उसे चूज करेंगे. लेट अस नो. An autocorrect option in spelling and grammar dialog box automatically corrects the spelling as you type without any need to confirm each correction. ऑटो करेक्ट ऑप्शन क्या करता है बच्चों? हमारी ईच एंड एवरी स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स ऑटोमेटिकली उसे करेक्ट करता जाता है, तो हमें उसको वापस करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती. अंडरस्टूड अबाउट इट? Yes or no? Yes. So see some points at a glance what we have learned in this part second. First one is a word application opens a blank document with the temporary name document 1. अगर हम वर्ड एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वहाँ पे टेम्पररी एक वर्ड हमें दिखता है पर उसका नाम होता है डॉक्यूमेंट 1. मेकिंग चेंजेस इन डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एडिटिंग. अगर हम चेंजेस करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट में तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग एडिटिंग कहते हैं. द नेक्स्ट वन, टू परफॉर्म एनी एक्शन लाइक कॉपिंग, मूविंग, फाइंडिंग, रिप्लेसिंग, डिलीटिंग और फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट वी नीड टू सिलेक्ट द टेक्स्ट फर्स्ट. अगर हमें उसमें कोई भी परफॉर्म करनी है एक्शन, कोई कॉपी करना है, पेस्ट करना है, मूव करना है या रिप्लेस करना है, उसके लिए पहले हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे जो टेक्स्ट है हमें उसे सिलेक्ट करना है. नेक्स्ट वन, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आर इंडिकेटेड विथ अ रेड वेवी लाइन बीनीथ देम. अगर स्पेलिंग गलत होता है डॉक्यूमेंट में तो जिस वर्ड में स्पेलिंग रॉन्ग होता है उसके नीचे हमें रेड लाइन शो होती है. And grammatical errors are indicated with a green wavy line. If the grammatical mistake was there in our document, so this green wavy line will appear below the word. Understood about it? So these are the some shortcut keys also there in this lesson, so you have to write these shortcut keys one by one in your computer notebook with their use. Okay, understood it? Read this lesson 2 to 3 times for your better understanding. If you have any doubt, any query, please contact me. Till then, thank you.